Hello everyone. Today's topic is factorial. In this class, we are discuss some important concept on factorial. So let's start with definition. What is a factorial? So that means factorial. Factorial is the product of natural number. Factorial is the product of natural number. Suppose take one example. The first example, n factorial. This is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to n minus 1 into n. तो हमारा जो फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है इसमें हमने सबसे पहले देखा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 up to n minus 1 into n. So let's start the very basic 0 factorial. What is the value? This value is equal to 1. This value is equal to 1. Maybe suppose अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो इजिली हम इसे प्रूफ भी कर सकते हैं. 0 factorial is equal to 1. According to definition, n factorial, this is equal to n into n minus 1 factorial. N into n minus 1 factorial. Put in this equation, n is equal to 1. 1 factorial, this is equal to 1 into 1 minus 1 factorial. From here, 0 factorial and 1 minus 1 factorial, this is equal to 0 factorial. The value of 1 factorial is equal to 1 divided by 1 is equal to 1. That means in this case 0 factorial is equal to 1. ये हमने प्रूफ कर लिया. नेक्स्ट अगर हम देखें what is the value of 1 factorial? 1 factorial, this is equal to also 1. What is the value of 2 factorial? This is equal to 1 into 2, this is equal to 2. What is the value of 3 factorial? 1 into 2 into 3, this is equal to 6. Similarly, what is the value of 4 factorial? 1 into 2 into 3 into 4 is equal to 24. And what is the value? Very important line. 5 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. That means this is equal to 120. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पे देखना चाहते हैं वो क्या है कि if product of 2 and 5, product of 2 and 5, 2 और 5 का अगर हम प्रोडक्ट लें तो हमें इंड में हमें एक सिंगल जीरो मिलता है. कितने जीरो मिलते हैं? सिंगल जीरो. सपोज if we are calculating the value of 6 factorial, this is equal to 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, this is equal to 720. लास्ट में हमें एंड में क्या मिल रहा है? एक सिंगल जीरो, वन सिंगल जीरो. दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5. अगर 2 का प्रोडक्ट अगर हम 5 में करते हैं तो हमें एंड में क्या मिल रहा है? वन सिंगल जीरो. एक सिंगल जीरो हमें कहां पे मिलता है? एंड में मिलता है. कब मिलता है? जब हम 2 and 5 का प्रोडक्ट लेंगे. क्लियर एवरीवन? तो दैट मीन्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसको हम अभी देखेंगे कि किस टाइप इस कॉन्सेप्ट का यूज करके एग्जामिनर किस टाइप की प्रॉब्लम आपसे पूछते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टोरियल इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर. n फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4. What is the value of 0 factorial? Is equal to 1. 1 factorial is equal to 1. 2 factorial is equal to 2. 3 factorial is equal to 6. And 4 factorial 24. But in case of 5 factorial, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. That means 2 का प्रोडक्ट अगर हम 5 से करें, 2 का प्रोडक्ट किससे कर लें? 5 में. 2 का प्रोडक्ट अगर हम 5 में करते हैं, इन दिस केस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमें इंड में क्या मिल रहा है? वन सिंगल जीरो. एक सिंगल जीरो हमें मिलता है कहां पे? इंड में. सिमिलरली अगर हम इंक्रीज करते हैं तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू, यहां पे भी हमारा प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाई बाई 5. 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमें इंड में क्या मिल रहा है? एक सिंगल जीरो.
तो एक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. द क्वेश्चन इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल, व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और अगर ये कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट अगर आपको जो मैंने अभी तक डिस्कस किया है अगर आपको समझ आता है तो दैट मीन्स आप इजीली यहाँ पे आंसर दे सकते हैं. तो देखते हैं इन दिस केस व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट. यूनिट प्लेस डिजिट 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus 4 factorial plus 5 factorial plus 6 factorial dot dot 100 factorial. In this case अगर हम कैलकुलेट करें what is the value of 1 factorial, this is equal to 1. What is the value of 2 factorial, is equal to 2. What is the value of 3 factorial, this is equal to 6. What is the value of 4 factorial, this is equal to 24. If calculate the value of 5 factorial, the value is 120. And question is what is the unit place digit. So that means हमें जो कंसंट्रेट करना है वो यूनिट प्लेस डिजिट पे करना है. किस पे हमें कंसंट्रेट करना है, यूनिट प्लेस डिजिट. तो आप चेक करिए अगर हम 5 फैक्टोरियल के बियॉन्ड कोई भी वैल्यू चेक करें, कोई भी वैल्यू लें, 5 फैक्टोरियल इंड में 120, दैट मीन्स इंड में हमें एक जीरो हमें मिल रहा है. इन केस ऑफ 6 फैक्टोरियल द वैल्यू इज 720. यहाँ पे भी हमें इंड में क्या मिल रहा है, 1 सिंगल जीरो, एक जीरो. अगर हम इसके बियॉन्ड वैल्यू चेक करें तो क्या 7 फैक्टोरियल में 5 मल्टीप्लाई बाई 2 आ रहा है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2. और हमने इसके पहले आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर 5 फैक्टोरियल जब भी हमारा प्रोडक्ट 5 फैक्टोरियल केस में 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है तो हमें इंड में क्या मिल रहा है, 1 सिंगल जीरो. 2 मल्टीप्लाई बाई 5. तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल के केस में 2 मल्टीप्लाई बाई 5 लास्ट में हमें जीरो मिल रहा है. 7 फैक्टोरियल में भी आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 8 फैक्टोरियल में. तो दैट मीन्स क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर 5 फैक्टोरियल एंड बियॉन्ड इट एवरी फैक्टोरियल विल एंड विथ एट लीस्ट 1 जीरो. क्योंकि अगर हम 5 फैक्टोरियल या उसके बियॉन्ड कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू कैलकुलेट करें तो उसमें एक प्रोडक्ट हमें मिलेगा जिसमें प्रोडक्ट होगा 2 and 5 का. तो जब 2 and 5 का प्रोडक्ट होगा तो इंड में हमें यह ट्रेलिंग विथ 1 जीरो, एटलीस्ट 1 जीरो. सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस और अच्छा करना चाहें तो यहाँ पे एक बात हम और भी बोल सकते हैं कि इन केस ऑफ 10 फैक्टोरियल, इन केस ऑफ 10 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल के केस में क्या यहाँ पे एक 5 हमें मिल रहा है, 5 and 2, एंड दूसरा 5 जो हमें मिलता है वो कहाँ पे मिल रहा है, 10 में. 10 फैक्टोरियल की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो आप बोल सकते हैं 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9 into 10. देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5. अगर 2 का प्रोडक्ट हम किस में करें, 5 में, तो क्या हमें एक सिंगल जीरो मिलेगा, 1 सिंगल जीरो. यस, 100% मिल रहा है 2 मल्टीप्लाई बाई 5. तो क्या दूसरा 5 आपको यहाँ पे मिल रहा है 10 में, 2 into 5, तो क्या एक और जीरो हमें मिल जाएगा. तो दैट मीन्स जो सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने नोट में यहाँ पे दिया है 10 factorial and beyond it every factorial will end with at least 2 zero. Similarly, third case, in case of 15 factorial and beyond it every factorial will end with at least 3 zero. तो यहाँ पे हमें जो कॉन्सेप्ट, जिस की पॉइंट को हमें रिमेंबर रखना है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 5 and 2 का अगर हम प्रोडक्ट करें, किसका प्रोडक्ट करें, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो इंड में हमें क्या मिलेगा, 1 जीरो. तो इन दिस केस अगर हम यहां पे चेक करें, अपने क्वेश्चन पे आते हैं. इन दिस केस द क्वेश्चन इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अप टू 100 फैक्टोरियल. अगर हम इनका सम करें, 1 फैक्टोरियल वैल्यू इज 1, 2 फैक्टोरियल वैल्यू इज 2, 3 फैक्टोरियल वैल्यू इज 6 एंड 4 फैक्टोरियल वैल्यू इज 24, 5 फैक्टोरियल वैल्यू इज 120. तो अगर हम 5 फैक्टोरियल के बियॉन्ड में कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करें, क्या हमें यूनिट प्लेस पे जीरो मिलेगा, यूनिट प्लेस पे हमें क्या मिलेगा, कोई भी वैल्यू आप चेक करिए बियॉन्ड 5 फैक्टोरियल.
तो अगर हमें यूनिट प्लेस डिजिट फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? यूनिट प्लेस डिजिट। देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड आउट द यूनिट प्लेस डिजिट। व्हाट इज द यूनिट प्लेस डिजिट? तो क्या हम 4 फैक्टोरियल तक की वैल्यू, यहां तक की वैल्यू सम कर लें, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24, तो दिस इज इक्वल टू 33। और रिमेनिंग जो भी वैल्यू है 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल अप टू यहाँ पे 100 फैक्टोरियल दे रखा है, मे बी आप इंक्रीज करके 150 फैक्टोरियल ले लीजिए, 999 फैक्टोरियल, 4 टाइम्स 9 फैक्टोरियल, कोई भी वैल्यू आप चेक करें तो क्या यूनिट प्लेस चेंज होगा? क्योंकि 5 फैक्टोरियल और इसके बियॉन्ड कोई भी फैक्टोरियल वैल्यू है तो हमें इंड प्लेस पे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे अगर हम 0, कितने भी 0 तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? इन दिस केस 3। तो हमें ऐसा लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। इन दिस केस 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल, जिसके यूनिट प्लेस डिजिट क्या है? 3। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने ऐसा देखा है कि कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट हमारा नोट जो आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और कैसे आता है ये भी। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे फैक्टोरियल चैप्टर से, 100 फैक्टोरियल ट्रेलिंग विथ हाउ मेनी जीरोस। दैट मीन्स 100 फैक्टोरियल के अगर हम प्रोडक्ट निकालें, 100 फैक्टोरियल के सॉल्व करके प्रोडक्ट निकालें तो ट्रेलिंग विथ हाउ मेनी जीरोस या एंड विथ हाउ मेनी जीरोस, एंड में कितने जीरो आएंगे। तो देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इजी है। अगर आप 3 मिनट यहाँ करें तो दैट हम आपको ये कॉन्सेप्ट इजी हम आपको समझाएंगे। और उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि कॉन्सेप्ट हम कैसे अप्लाई करेंगे। हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया जो अभी तक, कि अगर हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हमें एक सिंगल जीरो, एंड में हमें क्या मिल रहा है? एक सिंगल जीरो। जब हम किसका प्रोडक्ट ले रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हम ये चेक करते हैं कि 100 फैक्टोरियल में, इन 100 फैक्टोरियल क्या हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 डॉट 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 100। क्या हम राइट डाउन कर सकते हैं? यस, 100% कर सकते हैं। तो हम ये चेक करें कि जब इनका प्रोडक्ट लेंगे, क्या लेंगे? इनका प्रोडक्ट, तो ट्रेलिंग विथ हाउ मेनी जीरोस, दैट मीन्स इंड में कितने जीरो आएंगे। सॉल्व करके अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें इंड में कितने जीरो मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा वो ये था 2 मल्टीप्लाई बाई 5, तो हमें इंड में क्या मिल रहा है? एक सिंगल जीरो। इफ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 तो हमें इंड में क्या मिल रहा है? 1 सिंगल जीरो। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखें कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 कितनी बार आएगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट 5, हाउ मेनी टाइम्स 5 विल कम। तो सबसे पहले हम देखें, अगर एवरी सेकेंड नंबर 2 4 6, नेक्स्ट हमारा सेकेंड अगर देखें 7 इंटू 8, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एवरी सेकेंड नंबर जो गिवन है 100 फैक्टोरियल में वो इवन है, इवन नंबर है। अगर ये इवन नंबर है तो क्या इसमें 2 का प्रोडक्ट होगा? 100% होगा। अगर ये एवरी सेकेंड नंबर हमारा क्या है? यहाँ पे इवन है। अगर ये इवन है तो क्या इसमें जो 2 का प्रोडक्ट होगा? 100% होगा। तो दैट मीन्स हमें जो रिक्वायरमेंट है वो बेसिक रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की है? फर्स्ट वन, एक तो हमारे पास क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सेकेंड 5, तो 5 अगर हम देखें 100 फैक्टोरियल में तो 5 कहां पे आ रहा है? फर्स्ट 5 अगर आप चेक करें तो 1 2 3 4 5th पोजीशन पे आ रहा है। नेक्स्ट 5 कहां पे मिलेगा आपको? 10 में मिलेगा। अगेन नेक्स्ट 5 आपको कहां पे मिलेगा? 15 में मिलेगा। तो दैट मीन्स हम अब क्या कैलकुलेट करना चाहेंगे कि 5, क्यों ऐसा कि 5 कैलकुलेट करना चाहेंगे? क्योंकि हमें चाहिए एंड में 0। तो दैट मीन्स 0 की पॉसिबिलिटी कब है? जब 2 मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमने ये चेक कर लिया कि 2 तो हमारे पास अवेलेबल, एवरी सेकेंड नंबर इवन है 100 फैक्टोरियल के प्रोडक्ट में। 100 फैक्टोरियल की वैल्यू में अगर हम देखें एवरी सेकेंड नंबर हमारा इवन है, तो दैट मीन्स इन केस ऑफ दिस अगर हम 5 कैलकुलेट करना चाहें कि 100 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आता है, हाउ मेनी टाइम्स 5 विल कम,
तो क्या फिफ्थ पोजीशन पे 5 आ रहा है, नेक्स्ट 5 हमें कहां पे मिलेगा, 10 में मिलेगा, अगेन नेक्स्ट 5 हमें कहां पे मिलेगा, 15 में मिलेगा। तो दैट मीन्स इसका एक बड़ा बेसिक रूल है, अगर आप एनालिसिस करें तो देखिए 100 फैक्टोरियल जो भी वैल्यू है, कई सारे मेथड है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं यहाँ पे कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो 100 जो भी वैल्यू फैक्टोरियल में है आप क्या करेंगे, उसे हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए, हमने क्या किया 5 से डिवाइड। अगर हम यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हैं तो दिस वैल्यू इज 20, कितना आ गया 20। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि सर ये 20 तो आ गया, बट वो 25 कौन कौन से, तो हम उसे भी लिख देते हैं यहाँ पे। देखिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। आप काउंट करके चेक कर सकते हैं टोटल कितने हैं, 20। और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर भी देते हैं ट्रेलिंग विथ 20 जीरो, जो कि पेटेंट रॉन्ग आंसर है इन दिस क्वेश्चन। क्यों ऐसा, देखिए ध्यान से, अगर हम यहां पे देखें 25, क्या यहाँ पे 5 2 टाइम्स आया, 5 स्क्वायर, 25 को हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो दैट मीन्स 5 कितनी बार आया, 2 टाइम्स। इन दिस केस 50 5 स्क्वायर इंटू, in case of 75 5 square into 3, in case of 100 5 square into 4। तो दैट मीन्स हमने 20 तो काउंट कर लिया नो डाउट, बट हमने क्या मिस किया, ये 4 और 5 थे उन्हें हमने मिस कर दिया। तो यहाँ पे ये जो पेटेंट रॉन्ग आंसर है वो 20 है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ने भी कैलकुलेट किया होगा, तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 25% स्टूडेंट वो आंसर कितना दे रहे हैं, 20। बट हमने मिस क्या किया, देखिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि एप्टीट्यूड जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप मिस्टेक पे कंसंट्रेट करें कि स्टूडेंट मिस्टेक कहां पे कर सकता है, अगर आप उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि आपका जो एग्जाम का जो स्कोर है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। क्योंकि मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में ये मिस्टेक करते हैं और यहाँ पे मिसिंग कर जाते हैं कि ये हम कैसे कैलकुलेट करें। उसके लिए आपको थोड़ा सा भी बस केवल 5 से 10 सेकेंड आप कंसंट्रेट करिए। एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप वो सीख जाएंगे तो दैट मीन्स आप ये मिस्टेक कभी नहीं होगा कि जो हमारे मिस हो रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें, जब ये वैल्यू आपने 100 को 5 से डिवाइड किया, दिस इज इक्वल टू 20। तो जब ये वैल्यू ग्रेटर देन, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर से ग्रेटर देन आए, तो आप अगेन 20 को, अगेन किसको, 20 डिवाइडेड बाई 5। व्हाट इज द वैल्यू, दिस इज इक्वल टू 4। देखिए आपके जो मिसिंग नंबर्स थे, जितने 5 आपने मिस किए थे, वो सारे 5 यहाँ पे कैलकुलेट, 20 डिवाइडेड बाई 5, दिस इज इक्वल टू 4। जितने भी 5 आपने मिस किए थे वो सारे 5 कहां पे कैलकुलेट हो गए, यहाँ पे कैलकुलेट। देखिए कौन कौन से, 25, 50, 75 एंड 100, ये सारे 5 हमारे यहाँ पे कैलकुलेट हो गए। फर्स्ट टाइम वो इसमें कैलकुलेट हुए 20 में, और जो सेकंड 5 था वो कहां पे कैलकुलेट हुआ, 4 में। अगर हम यहाँ पे टोटल सम करें तो कितना आ गया, 24। तो आप ये बोल सकते हैं ट्रेलिंग विथ 24 zeros इन 100 फैक्टोरियल। 100 फैक्टोरियल का अगर हम प्रोडक्ट लें, 100 फैक्टोरियल अगर हम प्रोडक्ट लें 1 into 2 into 3 डॉट 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 100, अगर आप इसे सॉल्व करें तो सपोज x y z डॉट डॉट जो भी नंबर है, तो ट्रेलिंग विथ हाउ मेनी जीरोस, 1 2 3 4 डॉट 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 24 अप टू 24 जीरो। तो आंसर क्या हो जाएगा इन दिस केस, 24। आंसर इन दिस केस 24। तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट समझ में आया। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूं कि जब भी जीरोस कैलकुलेट करने की बात करता है, क्या बात करता है, जीरोस कैलकुलेट करने की, तो आपके माइंड में एक ही चीज आना चाहिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें एक सिंगल जीरो चाहिए तो हमें प्रोडक्ट किन नंबरों के प्रोडक्ट लेने। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट हमें किसका लेना है, 2 and 5। 2 का प्रोडक्ट अगर हम 5 में करेंगे तभी हमें क्या मिलेगा,
एक सिंगल जीरो. इफ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 देन विल गिव सिंगल जीरो. तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और बिल्डअप करेगा. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है. इन 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी टाइम्स डज 2 अपीयर. तो चलिए देखते हैं कि 100 फैक्टोरियल के प्रोडक्ट में, इन 100 फैक्टोरियल के प्रोडक्ट में 2 कितनी बार आएगा. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे और देन आफ्टर हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे. सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन पे. एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा. जो भी डाउट रहेंगे आप वो भी वो भी आपका क्लियर हो जाएगा. तो चलिए देखते हैं. इन केस ऑफ 100 फैक्टोरियल, अब क्वेश्चन क्या है कि 2 कितनी बार आएगा, हाउ मेनी टाइम्स 2 विल कम. तो सबसे पहले जो हमने इसके पहले आपको बताया था कि जो भी फैक्टोरियल में वैल्यू हो, जो भी फैक्टोरियल में वैल्यू, आप उसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. आपकी रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पे, 2 की. क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, 2 की. तो 100 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 50. दिस इज इक्वल टू 50. अब देखिए यहाँ पे 2 कौन कौन से आ गए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 डॉट डॉट. यहाँ पे 50 हमने काउंट किया. अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, इफ वैल्यू, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं. यहाँ पे डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, 2 से. डिवाइजर क्या है यहाँ पे, 2 है. तो अगेन 50 इज डिवाइडेड बाई 2. देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 25. इन दिस केस अगर हम अब काउंट करना चाहें तो कौन कौन से 2 काउंट होंगे. देखिए क्या 4 में 2 टाइम्स आया, इन 4 2 टाइम्स. फर्स्ट टाइम कहां पे काउंट हो गया, इस 50 में. सेकेंड टाइम जब हम लिखेंगे वो यहां पे काउंट हो रहा है. अब कौन कौन से 2 काउंट हो रहे हैं, नंबर्स देखिए, 12, 16, 32 डॉट डॉट. ये सारे नंबर हमारे कहां पे काउंट हो गए, 25 में. यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स आया था. अगेन देखिए अब स्टूडेंट ये माइंड में सोच रहे हैं कि सर ये तो ऑपरेशन हो गया तो हमें यहाँ स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि 100 फैक्टोरियल में हमने देखा था 2 टाइम्स. नहीं, इसे हम कब स्टॉप करेंगे, जब ये वैल्यू लेस देन आ जाए डिवाइजर से. ये वैल्यू लेस देन आ जाए डिवाइजर से. तो क्या हम 25 को अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, यस, अगेन डिवाइड करेंगे. 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5. क्या आएगा, 12.5. तो हम यहाँ पे पॉइंट के टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे. हम क्या करेंगे, पॉइंट के टर्म्स को निग्लेक्ट कर देंगे. तो चलिए देखिए अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से 2 काउंट होंगे. क्या ये सारे 2, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कंसंट्रेट करिए. इन केस ऑफ 8, 2 क्यूब, दैट मीन 8 में 2 3 टाइम्स आया. फर्स्ट टाइम यहाँ पे काउंट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ पे काउंट हुआ और थर्ड टाइम यहाँ पे काउंट हो रहा है. क्लियर एवरीवन, ओके. नेक्स्ट अब हम देखते हैं 12. दिस 12, ये वैल्यू ग्रेटर देन है 2 से, तो 12 अगेन डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6. अब की बार कौन कौन से आ जाएंगे, क्या यहां पे आप चेक कर सकते हैं. इन दिस केस 2 हाउ मेनी टाइम्स, 4 टाइम्स. इन केस ऑफ 16 2 4 टाइम्स आ रहा है. फर्स्ट यहां पे काउंट हुआ, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ टाइम यहां पे. नेक्स्ट अगेन 6 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 3. अब हम देखते हैं यहां पे कौन कौन से नंबर आएंगे, 32, 64 एंड 96. आप चेक कर सकते हैं 32 में 2 5 टाइम्स आया, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ टाइम्स कहां पे काउंट हुआ, 3 में. दिस 3 अगेन डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1.5. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट वाली टर्म्स निग्लेक्ट कर देंगे. तो कौन से 1 आएंगे, 64. 64 में आप चेक कर सकते हैं 2 6 टाइम्स है, तो दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6. क्लियर एवरीवन. अब हम इसे ऐड कर, जब आप इन्हें ऐड करेंगे टोटल ऐड करके कितना आता है, 97. तो दैट मीन्स सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, इन 100 फैक्टोरियल
हाउ मेनी टाइम्स डज 2 अपीयर, तो हम ये बोल सकते हैं कि कितनी बार 2 आया, 97। क्लियर एवरीवन? तो अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, सभी लोग ट्राई करिए, और मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग उसे मैच भी करिए। देखिए जो प्रोसेस मैं यूज कर रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, क्या वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो यहाँ पे दिया है, इन 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी टाइम्स 3 विल कम, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिए। मैं यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ, इसके बाद आप क्रॉस वेरीफाई भी करिए क्या जो आपने सॉल्व किया है वो करेक्ट है। चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी 3 विल कम, 100 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100। तो हमने जो कॉन्सेप्ट आपको बताया था वो कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 जो भी हमें नंबर चाहिए, 3 चाहिए, हमने 3 से डिवाइड किया, तो दिस इज इक्वल टू 33। पॉइंट वाली टर्म्स हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। पॉइंट वाली टर्म्स हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट। चलिए देखिए यहाँ पे कौन कौन से 3 आ गए, ये सारे हमने इस 33 में कैलकुलेट किया। अगेन 33 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 11। अब यहां पे कौन से आएंगे, अगेन 11 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज इक्वल टू 3। अब यहां पे कौन से आएंगे, 27 81 डॉट डॉट, 3 नंबर यहां पे आ गए। अगेन दिस वैल्यू इक्वल पे नहीं हमें ऑपरेशन स्टॉप करना है, यहां पे एक स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, या वैल्यू इक्वल आ जाती है तो स्टॉप करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जब तक वैल्यू लेस देन नहीं आ जाए डिवाइजर से, तब तक आपको ऑपरेशन स्टार्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को अगेन डिवाइड करेंगे 3 से, दिस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा 81। अब आप चेक कर सकते हैं 81 में 3 4 टाइम्स आएगा, एक बार यहाँ पे काउंट हुआ, सेकेंड टाइम यहाँ, थर्ड टाइम यहाँ, फोर्थ टाइम यहाँ पे। तो टोटल अगर हम ऐड करें, टोटल सम करें, तो दिस इज इक्वल टू 48। तो आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इन 100 फैक्टोरियल हाउ मेनी टाइम्स 3 अपीयर, 48 टाइम्स, 48 टाइम्स। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझ आया। मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इन 100 फैक्टोरियल व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 12, इन 100 फैक्टोरियल व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 12। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पा रहे हो तो दैट मीन्स वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे अभी तक तो हम कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 से हमने कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया, और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग भी ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का पेटेंट रॉन्ग आंसर जो आता है वो पेटेंट रॉन्ग आंसर है 8, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा मुझे लगता है जिन्होंने कैलकुलेट भी किया होगा, इसका आंसर कितना 8। चलिए हम बताते हैं क्या रीजन है, ऐसा क्यों कर रहे हैं सभी लोग। इंटू डॉट डॉट 12 24 36 48 60 96 एंड 100। तो जिन लोगों का आंसर 8 आया था उन्होंने मिस्टेक क्या किया था वो देखिए सभी लोग, उन्होंने 12 कैलकुलेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और उनका मिस्टेक क्या है वो देखिए। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई बाई 4 करें, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 दिस इज इक्वल टू 12। 2 मल्टीप्लाई अगर यहाँ पे हम देखें 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाई 6, दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू 12। तो हमने मिस क्या किया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या इस टाइप के बहुत सारे नंबर आएंगे? तो जितने लोगों ने 8 कैलकुलेट किया था उनका मिस्टेक क्या था, उन्होंने बस वो कैलकुलेट किया कि 12 24 36 48 60 72 84 96,
और बाकी रिमेनिंग नंबर्स वो भूल गए। तो ये मिस्टेक है, और एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन में पहला ऑप्शन 8 देता है और स्टूडेंट यहाँ पे खुशी खुशी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करते हैं, और वहां पे आगे उन लोग सोचने का टाइम ही नहीं देते, और वो सोचते हैं कि हमने करेक्ट करके आए और प्रॉब्लम वहां पे हो जाता है रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन आप डिस्कस किए थे। पहले में हमने 5 कैलकुलेट किया था, दूसरे में हमने 2 कैलकुलेट किया था, और तीसरे में हमने 3 कैलकुलेट किया था। क्या सभी प्राइम नंबर थे? यस, प्राइम नंबर थे। और प्राइम नंबर, क्या हम 12 यहाँ पे बोल सकते हैं 12 प्राइम नंबर है? नहीं, कंपोजिट नंबर। क्या हम डायरेक्टली 12 से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे, उसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे मैंने अपने पहले लेक्चर में मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाया था। अगर नहीं भी आपने देखा है तो इसमें देखिए, बहुत ही सिंपल है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना। तो क्या हम 12 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। देखिए कैसे, बहुत ही सिंपल मेथड है। 12 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 6, अगेन डिवाइड बाई 2, 3 3 1, 2 2 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। तो क्या हम लिख सकते हैं 12 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। इस प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने का बेसिक मीनिंग क्या था, यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है, अगर हमें एक सिंगल 12 की रिक्वायरमेंट है, अगर हमें एक सिंगल 12 चाहिए तो टाइम्स चाहिए, 2 2 टाइम्स चाहिए एंड 3 1 टाइम्स चाहिए, 2 2 टाइम्स चाहिए एंड 3 1 टाइम्स चाहिए। तो हमें कैलकुलेट किस में करना है, 100 फैक्टोरियल। और 100 फैक्टोरियल में हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अभी अभी हमने सॉल्व करके देखा था कि 2 कितनी बार आया था, 297 टाइम्स, एंड 3 कितनी बार आया था, 48 टाइम्स। 297 टाइम्स एंड 3 48 टाइम्स। तो चलिए देखते हैं, अगर 297 टाइम्स आया एंड 3 48 टाइम्स, अभी इसके पहले हमने दोनों क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 में कैलकुलेट भी किया था और हमने सॉल्व भी किया। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए। तो थोड़ा सा मैथमेटिकल यूज करके क्या हम इसे रीअरेंज करें, 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1, टोटल पावर 48 इंटू 2 पावर 1। सिंपल मैथमेटिक्स हमने लगे, और देखिए थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखा है। अब कि दिस वैल्यू, क्या ये वैल्यू 12 के बराबर होगी? बोल सकते हैं आप, यस सर ये 12। तो 12 पावर कितना आ गया, 48 इंटू 2 पावर 1। तो दैट मीन्स व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 12 इज 48। तो आंसर इज 48। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। दिस इज द आंसर ऑफ 48। क्लियर एवरीवन? ओके, तो ये फैक्टोरियल जो कॉन्सेप्ट थे, जितने भी क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पे, वो काफी सिंपल और इजी क्वेश्चन है, जिससे आप इजिली आप देखेंगे जब भी कोई एग्जाम में अपियर होते हैं तो इजिली इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर उठाता है तो यही पेटेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो गया, तो दैट मीन्स आप फैक्टोरियल के चैप्टर, इस चैप्टर के सारे प्रॉब्लम आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल में इतना ही।